Critical state of matter, chapter name, fifth chapter. In a picture, different processes are take place. Solid mass is converted into a liquid. Liquid freeze, they are converted into a solid. Liquid is converted into a gas. The process is called evaporation. Gas is converted into a liquid. The process is called condensation. Solid is directly converted into a gas, not passed through a liquid state, is called sublimation. Today's topic is diffusion. The net movement of a particles from an area of a high concentration to an area of a low concentration. How is possible? Due to the random movement of a particles. See in a picture, left side is a high concentration molecule and right side is a low concentration molecules. So high concentration particles, movement of a particles from a lower concentration area. The liquid molecules are always in a state of a continuous motion. They move from high concentration to a lower concentration. They mix up with the molecules of other liquids so that they form a homogeneous mixture. Homogeneous mixture is called the mixture not about separate out the ink and the water molecules. ठीक है ना. होमोजीनियस हमारे पास क्या है कि जो एक जैसे हो जाए, जो होमोजेनाइज हो जाए, हमें सेपरेटली पता ही ना चले कि इसमें ये वाला जो सा मॉलिक्यूल है इंक के मॉलिक्यूल किधर है और वाटर के मॉलिक्यूल किस साइड पर है. Liquids have the ability to diffuse into one another. To understand the process of diffusion, let us take an example from our daily life. Here, ink and water. Ink and water, both are liquids. Now pour an ink into a water. You can notice that they mix easily to form a liquid mixture. Here, blue circle represents the ink molecules and the orange circles represents the water molecules. Now the question that comes in our mind that why diffusion take place in a liquid, not in a solid? Because answer is that the intermolecular spaces between the particles of the liquids are more, which enable to diffuse and help in the intermixing. But in our solid molecules, the intermolecular forces are so strong, so they are not easily break up the solid particles and diffuse into a liquids. So liquids is easily diffusible. Factors affecting the diffusion of our liquids. First factor, intermolecular forces. Liquids having weak intermolecular forces as compared to a solid diffuse faster than those having strong intermolecular forces. Size of the molecule. Second point is the size of the molecules. Big size molecule diffuse slowly. Big size molecules diffuse slowly. In a picture, you see about first some drops of the ink are poured into a water. They diffuse but slowly. In a next flask, they diffuse more than first one. And last beaker flask, you see about they diffuse more rapidly than first one. Big size molecule diffuse slowly. For example, honey diffuse slowly in water than that of alcohol in water. Shape of molecules. Regular shape molecules diffuse faster than irregular shape molecules. Smooth shape molecules. For example, circular particles are dissolves rapidly, diffuse rapidly as compared to a zigzag shape molecules. They can easily slip over and move faster. Temperature.
So fourth one point is our temperature. Temperature diffusion increases by increasing temperature. Diffusion is directly proportional to the temperature. If temperature increase, then diffusion increase. Because the high temperature, the intermolecular forces become weak due to high kinetic energy of the molecules. Next point, 89 page, density. The density of a liquid depends upon its mass over volume. Density is directly proportional to mass and inversely proportional to a volume. Volume increase, density decrease. Mass increase, density increase. System international unit is equal to kilogram. Mass unit is kilogram and volume unit is meter cube. So you see in a picture, green portion is some mass and the white colorless portion is a volume. So mass over volume per unit volume. Liquids are denser than gas because molecules of a liquid are closely packed and the space between their molecules are negligible. Next picture, liquid molecules are closely packed and the space between their molecules are negligible. Space between their molecules are negligible as compared to our gas molecules. But the solid molecules are tightly packed. As the liquids molecules have a strong intermolecular forces, hence they cannot expand freely and have a fixed volume. इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इनकी क्या होती हैं कि स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिसकी वजह से इसके मालिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे एज़ कम्पेयर टू आर गैस. द गैस मालिक्यूल्स आर फ्रीली मूव and have a fixed volume. Like gases, they cannot occupy all the available volume of the container. That is the reason why densities of the liquids are high. हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वाई जो सा लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर गैसेस. किस वजह से? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो से होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लेस देन सॉलिड. ठीक है. और ये फिक्स इनका वॉल्यूम होता है. ये गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होते हैं कि ये जो इस कंटेनर में डाले जाएं उसको वो क्या कर दें, उसमें एक्सपेंड हो जाएं. बल्कि ये क्या होता है कि जिस भी बीकर में डाला जाए तो उसका वॉल्यूम वही रहता है जो सा उसका स्टार्टिंग में होता है. ठीक है. इस वजह से हमारे पास जो से लिक्विड्स होते हैं वो मोर डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ गैस मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 gram per centimeter cube, while that of air is 0.001 gram per centimeter cube. लिक्विड की हमारे पास जो सी डेंसिटी है वो क्या है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो सी है गैस उसके 0.00 बहुत कम है. दैट इज़ द रीज़न वाई ड्रॉप्स ऑफ आ एयर फॉल्स डाउनवर्ड. ठीक है. जब बारिश होती है तो हमारे पास क्या होता है कि जो से हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि लिक्विड जो से उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो से हैं हैवी पार्टिकल्स वो उसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, अर्थ की तरफ होगी. दे मूव डाउनवर्ड. ठीक है. In a picture you see about a pin and the bulk of a wood. The density of the wood is higher as compared to a liquid. They move, they float top of the water, but the pin, their density is lower as compared to a liquid. They sink into the water. Last example in our 89 page, that is the reason is why the density of a liquid also vary. You can observe kerosene oil floats over water. केरोसिन ऑयल की अगर बात की जाए, यहाँ पर डिफरेंट ऑयल्स की लिख दी है, वेजिटेबल ऑयल, लैम्प ऑयल. ठीक है. ये डिफरेंट हमारे पास ऑयल्स हैं. लेकिन उन्होंने कहा जो सा हनी है उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है इन वाटर. लेकिन जैसे केरोसिन ऑयल है वो हमारे पास क्या होता है कि वाटर की लेयर के ऊपर
क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। उन्होंने कहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स भी हमारे पास क्या होती हैं, वेरी होती हैं। तो वेरी कर रही हैं इस तरह की हनी जो है सबसे उसकी मोस्ट डेंस है। फिर हमारे पास जो है कॉर्न सिरप 100%, मेपल सिरप, मिल्क, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास डिश सोप, वाटर, वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल और लैम्प ऑयल, इनकी वो सारी बता रहे हैं कि ये भी सारे लिक्विड्स हैं, लेकिन इनकी भी जो सी है डेंसिटी वो भी क्या करती हैं, वेरी कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड स्टेट। अ सॉलिड इज द state of matter that has a definite shape and a volume. The particles of a substance in a solid state are very close together and there is a strong attraction between them, strongly tightly packed and strong intermolecular forces. They are closely packed. The intermolecular forces are so strong that particles become almost motionless. Hence, they cannot diffuse. ठीक है, हमारे पास जो सी हैं सॉलिड पार्टिकल्स क्यों नहीं डिफ्यूज़ होते, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सी हैं वो क्या हैं, पार्टिकल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास डिफ्यूज़ नहीं हो सकती। सॉलिड पार्टिकल्स पोसेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, जस्ट वाइब्रेशनल मोशन टेक प्लेस इन अ सॉलिड पार्टिकल्स। टाइपिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं हमारे पास वो कौन सी हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, रिजिडिटी और डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि हमारे पास सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, दे पास थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड हीटिंग। द सॉलिड पार्टिकल पोसेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट वो अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो जो से हैं रैंडमली मूव नहीं कर सकते। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर मीन्स पोजिशन विद अ हाई स्पीड। ठीक है, जब इन्हें क्या दी जाती है, हीट दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ पिक्चर आइस इज हीटेड, जब इन्हें हीट दी जाती है तो क्या होते हैं कि वाइब्रेट होते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर मेन पोजीशन विद अ हाई स्पीड। इफ़ द हीट इज applied continuously, a stage reaches at which the particles leave their fixed position and they then become mobile। ठीक है, जब इन्हें कंटिन्यूसली हीट देती जाएंगे तो एट द एंड क्या होगा कि वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे और वाइब्रेशनल मोशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इजीली मूवेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड melts. The temperature at which the solid starts melting and coexist in a dynamic equilibrium with the liquid state is called melting पॉइंट। ठीक है, वो वाला पॉइंट जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स जो से हैं उसकी जो से पार्टिकल्स हैं, फिक्स पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह छोड़ दें, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कि मतलब इनके दरमियान में को एग्जिस्टेंस आ जाए कि डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, सॉलिड भी और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हों। ठीक है, द आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स make network structure to form macromolecules, so all such solids have a very high melting point। क्या होता है, उन्होंने कहा जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ तो जस्ट हमने सिर्फ आइस की एग्जांपल ली है, लेकिन जो से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो से पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो टाइटली एक दूसरे के साथ पैक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, दैन वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिजिडिटी। रिजिडिटी हमारे पास क्या है कि उनकी क्या है कि फिक्स पोजीशन हो। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मूवेबल। हमारे पास जो से सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, रिजिड हो, उनकी शेप जैसे वो स्टार्टिंग में और लास्ट पे भी वो वैसे ही रहे, तो उसको हम इसकी क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। हार्डपन, ठीक है, हार्डनेस। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, they have fixed position, therefore solids are rigid in their structure। सॉलिड जो से ये 3 dimensional होते हैं ना, तो इनकी जो सी है रिजिडिटी वो क्या होती है, फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है डेंसिटी। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये डेंसर होते हैं लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो बार बार हम बात कर रहे हैं, एंड डू नॉट हैव अ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, देयरफॉर दे हैव द highest density among the 3 state of matter। For example, density of aluminium
इज़ 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके MCQs हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम Al की जो सी है डेंसिटी वो 2.70, ये सॉलिड है ना। आयरन भी सॉलिड है, उसकी जो सी डेंसिटी हमारे पास कितनी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और गोल्ड भी सॉलिड है, इसकी जो सी हमारे पास कितनी है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब सॉलिड अगर डेंस है तो उनकी डेंसिटी भी क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। गोल्ड की सबसे ज़्यादा है, आयरन की उससे कम, और जो सी एल्यूमिनियम ये भी हमारे पास मेटल है और इसकी कितनी है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके MCQs के लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पार्टिकल्स आर अरेंज रैंडमली। यहाँ पर आप एमॉर्फस की जो सी है पिक्चर देख सकते हैं, डायग्राम, कि हमारे पास जो से पार्टिकल्स हैं वो क्या है, रैंडमली मूव कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन जो से वो टाइटली पैक्ड है, अरेंज्ड है, 3 डिमेंशनल है, ठीक है। कि मतलब अगर आपको इसको ब्रेक करना होगा तो इसकी फर्स्ट लेयर को ब्रेक करना होगा, देन नीचे वाला जो सा पोर्शन है वो क्या रहेगा, वो भी टाइटली पैक्ड रहेगा, फिक्स शेप रहेगी। फिर उसको भी ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड जो से होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज रैंडमली एंड हैव अ नो ऑर्डर पैटर्न। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो से है, पार्टिकल्स आर अरेंज इन एन ऑर्डर रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न है ना, पहले एक लेयर है फिर सेकेंड लेयर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल जो से सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्स की आ रही है, और जो से है एमॉर्फस सॉलिड्स उसमें हमारे पास ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। ये इजीली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। रबर या प्लास्टिक, उसको आप हीट देते हैं तो जो सी आप शेप देना चाहते हैं वो उसकी बन जाती है। ग्लास, उसको भी आपके पास डिफरेंट शेप के जो से हैं वो ग्लास जो से आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जो से सोडियम क्लोराइड है, जो से आपके पास टेबल सॉल्ट है, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स शेप का होता है। क्वार्ट्स, ठीक है, इसकी जो सी है शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और इसका जो सा होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉफ्टन ओवर आर रेंज ऑफ आर टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर की रेंज आप बढ़ाते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी बुक से देखा जाए तो हमारे पास जो सी हैं जस्ट लेफ्ट पे क्या हो जाती है, वो सारा कुछ हमने वैसे कह दिया हुआ है कि ये प्लास्टिक है, रबर, इवन ग्लास आर एमॉर्फस सॉलिड्स, दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। ऑल का क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होता है कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट शेप्स, ठीक है, एक ही एलिमेंट हो जैसे कार्बन, और उसकी हमने क्या है डिफरेंट शेप्स मैंने आपको इस पिक्चर में दिखा दी हैं। कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी होता है, डायमंड ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और डिफरेंट शेप्स में हमारे पास जो सा है वो एग्जिस्ट करता है, और उनका लिंक क्या है, कार्बन कार्बन लिंकेज ही है। यहाँ पर हमारे पास जो सी है उसकी डेफिनेशन हो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना वो हमारे पास क्या कहलाती है, इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स सच एज एलोट्रॉपी ऑफ ऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन ही है दोनों तरफ, लेकिन उनके जो से एलिमेंट्स की अमाउंट है वो क्या है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन में ओ जो से वो 2 हैं, और ओजोन में हमारे पास ओ की अमाउंट जितनी क्या है 3 है। Second point, different arrangement of 2 or more atoms in a crystals of an element such as sulfur shows allotropy due to different arrangement of molecules S8 in the crystals, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो सा है वो डेफिनेशन के तौर पर, डेफिनेशन जो सी है वो पूछी जाती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपी चेंज इनटू एन अदर। एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जो सी है वो दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, रोम्बिक S8 इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक, ये इसकी शेप्स बता रहे हैं। S8 में कितने टेम्परेचर पर, 96 डिग्री सेल्सियस पर। दरमियान में जो से एरोस हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और रिवर्स, मतलब रोम्बिक इज़ कन्वर्टेड इनटू अ मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक इज़ कन्वर्टेड इनटू अ रोम्बिक स्टेट।
P4 phosphorus for white is converted into a red. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या अदर एग्जाम्पल आर टिन एंड फॉस्फोरस. P4 इज कन्वर्टेड इनटू आ P4 एंड रेड में कन्वर्ट हो रहा है. और ये कितने टेम्परेचर पर? 250 डिग्री सेल्सियस पर. वाइट फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस एंड वैक्सी सॉलिड. ये साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता रहे हैं कि जो सी हमारे पास लेफ़्ट साइड पर वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कि इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, पॉइजनस है और एंड वैक्सी सॉलिड है. और जो सा हमारे पास है P4 उसकी उन्होंने नेक्स्ट हमारे पास जो सा है वो क्या है? टिन, ग्रे, क्यूबिक और वाइट टेट्रागोनल. और कितने टेम्परेचर पर? 13.2 डिग्री सेल्सियस पर. टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. वेल, रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव, नॉन पॉइजनस एंड अ ब्रिटल पाउडर. ठीक है, ब्रिटल पाउडर, चमकदार. और जो सा हमारे पास टिन है ग्रे, वो क्यूबिक और वो कन्वर्ट हो जाता है टिन वाइट टेट्रागोनल में. कितने टेम्परेचर पर? 13.2 डिग्री सेल्सियस पर. ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है. ये जितने भी आज मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं जिसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एलोट्रॉपी, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं. ठीक है, आपका आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे.